हम मानते हैं कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है एक सोच कि दुनिया बेहतरी के रंगों से निखर सकती है। एक सोच कि अच्छाई के रंग हम सब पर खिलते हैं। एक सोच कि ये रंग जब फैलेंगे तो खुद में खुशियां समेट लाएंगे। और इन्हीं बदलाव के रंगों को हम आपसे शेयर करते हैं, उस सोच के साथ जो जाती है हैप्पी रेनबो बॉक्स में। For that, we come to the India Today State of the States Awards ceremony, and we have a little bonus for you. Success mantras of winning chief ministers will be presented as well. Moving on, let's begin with our first award, Best Performing Small State in Cleanliness and Most Improved Small State in Governance. The award goes to Sikkim. We have Mr. Tamang say a few words for us. Namaskar, dear friends, warmest autumn greetings. On behalf of the people of Sikkim, with great pleasures and pride, I heartily accept the award bestowed on Sikkim by India Today Group as the best performing small state in cleanliness and most improved small state in governance. This could not have been possible without the involvement, participation, and sense of ownership of the Sikkimese people. I would like to express our gratitude to India Today for this great honor. I must also applaud the crucial roles played by various organs of the state government, including the Department of Urban Affairs, Rural Development, Health and Sanitation, and municipal corporations, panchayats, schools, and colleges, and various civil society organizations for their single-minded effort and devotion in making Sikkim one of the most attractive health and tourism destinations. We are deeply inspired by our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji's profound missions of Swachh Bharat and also minimum government and maximum governance. We implement both this mission stoutly and effectively. For us in the hill and mountains, good governance involves delivering the basic services of health, education, road and communications, agriculture and water, market and technology at the very door steps of every household. While doing so, we strictly abide by transparency, accountability, and sustainability. We involve people, beneficiaries, and the grassroots institutions in the delivery of these services for larger participation and to nurture sense of ownership. We consciously ensure environmental security and protection of cultural ecology. However, we have many fronts where we shall have to make unconventional intervention and innovatively harness technology to attain higher growth, generate varieties of employment opportunities, and build skill. We are experimenting new set of social engineering for more equitable distribution of resources. The deprived, alienated, and the marginalized are now being brought to a level playing field that will transform their lives and livelihood. A prolific national recognition like this coming from one of the most prestigious institutions of modern India, that is India Today, provides all of us space to think big and achieve greater heights. Our unique brands like organic farming and culture, biodiversity hotspots, custodians of traditional medicinal systems, fighter against climate change, impact and law-abiding and peace-loving community are increasingly recognized at the national and global level. Being located in a sensitive geopolitical topography, the people of Sikkim have always
upheld the national interest with full devotion. Our fight against the daunting coronavirus only reflect our spirit of national solidarity and pride in being Indians. We are determined to be the best in India. We once again profusely thank the entire India Today team for their recognition and good wishes. Thank you. Jai Hind, Jai Sikkim. Moving on to the next category, Best Performing Small State in Law and Order, and the winner here is Nagaland. Our next category, Best Performing Small State in Inclusive Development and Most Improved Small State in Economy, Health and Entrepreneurship, and the award goes to Mizoram. Moving on to our next category, Best Performing Small State in Agriculture and Most Improved Small State in Infrastructure. Again, the winner here is Tripura. We have with us Mr. Biplab Kumar Dev sharing his success story. नमस्कार, मैं इंडिया टुडे ग्रुप्स की सभी सदस्यों को त्रिपुरा सरकार के तरफ से एवं त्रिपुरा की जनताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। आप लोगों ने पूरे देश भर की सभी राज्यों का डेवलपमेंट की जो आकलन किया है और उसमें बड़े स्टेट और छोटे स्टेट के नाते अलग अलग क्षेत्र में डेवलपमेंट का पैरामीटर बना के अपने पुरस्कृत करने का जो बेहतरीन तरीका अपनाया, मैं इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ त्रिपुरा छोटे स्टेट में एग्रीकल्चरल ग्रोथ में सबसे आगे है और मुझे आपसे बताते हुए खुशी हो रहा है। त्रिपुरा में हमने 50,000 हेक्टेयर के ज़मीन को उसमें भुट्टा लगाना, उसमें साग सब्जी लगाना और भी दूसरे क्रॉप्स लगाने का निर्णय लिया है, जो कि पहले मैक्सिमम ज़मीन में धान ही लगाया जाता है। हम लोगों ने देखा जो 1 रुपया लागत में धान में 1 रुपया 35 पैसा आता है, मतलब 1 रुपया लगाने से ओनली 35 पैसा ही लाभ होती है और भुट्टा में 1 रुपया लगाने से 2 रुपये 45 पैसा आता है। तो इस कारण से हम लोगों ने निर्णय लिया, त्रिपुरा में बड़ी मात्रा में जूम चाष होती है, जनजाति है, तो जूम चाष में बड़े आराम से भुट्टा के फलन हो सकती है। उस सरकार ने वो निर्णय लिया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लगभग 2,24,000 लोगों के घर में पहुंचा दिया है। तो इससे भी बहुत बड़ी राहत किसानों को मिली है। हर साल 6,000 रुपये करके मिल रही है और इस लागत से किसान अपने खेती में काम करने के लिए जो बीज हो और बाकी सब व्यवस्था है उससे सहयोग मिलता है। और राज्य सरकार ने किसानों को जो जो सुविधा मुहैया करा सकते हैं अपने आर्थिक स्थिति के ऊपर रह के, ये सब कुछ इस सरकार ने नए नए स्कीम्स के माध्यम से किए हैं। और किसानों को सिक्योर करने के लिए प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना लागू तो किया ही है और उसके साथ एडिशनल त्रिपुरा सरकार अपने स्टेट से भी, स्टेट बजट से
मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना लागू करके हम लोगों ने लगभग 80% किसानों को इसमें जोड़ने में सफल रहे हैं, जो कि देश में पहला स्टेट है जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सफल तरीके से लागू करने में कामयाब रहे। इससे किसानों को आत्मनिर्भर होने का मानसिकता तैयार हुआ और स्वनिर्भर होने का रास्ता खुल गया है। और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चरल क्षेत्र में भी त्रिपुरा ने अच्छा काम शुरू कर दिया है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने त्रिपुरा को हीरा बनाने का संकल्प लिया था। H फॉर हाईवेज, I फॉर हाईवेज, R फॉर रेलवेज और A फॉर एयरवेज, ये सभी 2 साल के अंदर आपने त्रिपुरा को दे दिया है। और जो अतिरिक्त आपने दिया है, जो कि चिटागांग बंदर का SOP हो गया है, 70 किलोमीटर है त्रिपुरा के बॉर्डर से, और मोत्री सेतु फेनी नदी के ऊपर कंप्लीट होने के बाद अभी दिसंबर में तो पूरे चिटागांग बंदरगाह से सीधा हमारे त्रिपुरा में एंट्री हो जाएगी। तो त्रिपुरा से समुद्र बंदर का रास्ता खोल दिया आपने, और जलपथ में भी 3 रास्ता है त्रिपुरा में आने की। तो एक समय त्रिपुरा में एक ही लाइफलाइन NH जो 8 वही थी, और आज के दिन में 7 तरफ से त्रिपुरा का रास्ता खुल गया है। मैं दोबारा इंडिया टुडे ग्रुप्स की सभी को और इन इस ग्रुप के चेयरमैन पुरी जी को और इनके जो पदाधिकारी है और पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। Moving on to our next category, Most Improved Small State in Law and Order. The award goes to Manipur. Moving on to our next category, Best Performing Small State in Environment and Most Improved Small State in Agriculture, Tourism and Inclusive Development. And the winning state is Meghalaya. Let's listen in on what Mr. Sangwa has to say about his winning state. Thank you, India Today, for this award and this great honor. I think this recognition that is given goes a long way in motivating the team that is working very hard behind the scenes to really take forward the state. And I must congratulate India Today for continuously coming out with these awards, because I think it pushes the states also to keep improving their performance year after year. Today, in terms of forest and environment, Meghalaya state has over 76% of forest cover, and we are improving this on a continuous basis and trying to improve the overall coverage of forest in the state. At the same time, we do realize that water is a very important aspect for our future. So we are one of the first states in the country to come out with a water policy. And this is being done to protect, to conserve, and to manage the water resources that we have. We have many programs that we have started in order to protect the spring sheds, in order to protect the catchment areas. In terms of agriculture, we've realized that it's very important to have a focused approach to the entire process. And therefore, we went for a mission mode. We had products like the Lakadong turmeric that we have, which is a very, very highly valuable product and in huge demand throughout the country and throughout the world. So we decided to go for a Lakadong mission. We decided to go for mushroom mission. We decided to go for jackfruit mission. We feel that a mission mode program and an approach allows us to focus in certain key areas, and as a time-bound process which will allow us to achieve goals within a certain time frame. Tourism is another very important aspect for us, and slowly and steadily we have been able to move towards a different policy which is to really target high-end tourism, which does not mean that we are forgetting the other tourists, absolutely not.
but the strategy is towards moving towards a high tourism end. And keeping that in mind, a number of policies, a number of programs have been done. We recently had, just before the COVID, we recently had the Megaland Age Festival, first of its kind in the state. At the same time, different infrastructure projects to improve the overall experience of the tourists are being done as we speak, and in the coming months, more such projects will be taken up. So a number of areas to ensure that sustainable tourism is there in our state of Meghalaya. So for this, once again, I thank India Today for recognizing the work that has been put in by the state government and by all the team that has been working behind. And once again, thank India Today. Moving on to the next winner, Best Performing Small State in Education and Health and Most Improved Small State in Cleanliness and Environment. The winner here is Puducherry. Let's take a listen on what Mr. V. Narayan Swamy, the Chief Minister of Puducherry, has to say. I am grateful to India Today who are giving the awards for Puducherry government for best performing state in education and health, as far as the most improved performance in cleanliness and environment. Now our government is running for the 5th year term. For the last 4 years continuously, India Today, after the survey, they have given us several awards. They do it on the basis of the field survey, and it is actually exactly on the basis of performance of every state. In fact, the India Today award has been recognized by the governments and also the general public. That is the beauty of India Today award. In fact, we got encouragement. Our government got encouragement. As Chief Minister, I got lot of encouragement and enthusiasm because of the award given by India Today. In fact, during this COVID situation, myself and my health minister, they went to the field and organized the people and saved a lot of lives. This is the real recognition which a government can get. And apart from the government of India, the India Today giving award, I feel it as a proud for my government, and it is a recognition to the services rendered by our government. In fact, during this COVID situation, we were very particular about cleanliness and environment. That has also been recognized by India Today, and I feel it as an honor for the 5th consecutive year, our government, the Congress-led government in Puducherry, is getting this award, and I am really honored by it. And in fact, the people of Puducherry will definitely cherish the same. Moving on to the next winning state, Best Performing Small State in Governance and Entrepreneurship. And the winning state here is Delhi. We have the Deputy Chief Minister, Mr. Manish Sisodia, share with us his winning mantra. थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं इंडिया टुडे ग्रुप को बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने दिल्ली सरकार के काम को, जो दिल्ली के पॉलिटिकल टीम है, दिल्ली के ऑफिसर्स की टीम है, इंजीनियर्स, डॉक्टर, टीचर्स, दिल्ली के कर्मचारी, इस सब की टीम को सराहा है, क्योंकि ये अवार्ड मेरे काम के लिए नहीं है, ये उन लाखों कर्मचारियों के काम का अवार्ड है। दोनों अवार्ड जो आप दे रहे हैं, तो उनको आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। एक सबसे 4th, 3rd ग्रेड पे भी खड़ा हुआ कर्मचारी है, वो भी फील करता है कि मेरा काम रिकॉग्नाइज हो रहा है जब उसको आप रिवार्ड देते हैं। सो मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं और आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस काम को रिकॉग्नाइज किया है। आप देखें, जो दोनों कैटेगरीज हैं, इसमें मैं कहूंगा दिल्ली सरकार, जो दिल्ली की पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, ये अपने आप में नई पार्टी है, तो ये भी स्टार्टअप ही है, एक नया एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में ही आप इसको देखें, और एक फ्रेश एनर्जी के साथ पॉलिटिक्स में काम कर रही है। और उसी का नतीजा है कि 2 साल चुनाव में लगातार 67 आउट ऑफ 70 और 62 आउट ऑफ 70 सीट्स लेके आए हैं। और जो काम कर रही है सरकार,
वो नए सिरे से सोच के कर रही है। देश की एकमात्र सरकार है जो 25% बजट एजुकेशन पे खर्च कर रही है, ऑलमोस्ट 20% बजट हेल्थ पे लगातार खर्च कर रही है और पिछले 5 साल से कर रही है, किसी एक साल में नहीं कर रही है। उसके अलावा डोर स्टेप डिलीवरी जैसी चीजें, हम ई सर्विस की तो बात करते हैं कि साहब आप अपने घर बैठे आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन भर जाती है, बट आप सरकार को फोन करिए और सरकार का आदमी आपके घर आएगा और जो चीजें वेरीफाई करने के लिए आपको दफ्तर जाना पड़ता था वो अब आपके घर पे आके वेरीफाई हो जाएंगे और आपके दिए टाइम पे आएगा। डोर स्टेप डिलीवरी गरीब आदमी के राशन से लेकर आपकी कार की डुप्लीकेट कॉपी, कार के कागजों की डुप्लीकेट कॉपी, आपके घर के कागजों की कॉपी, ये सब भी आप अपने घर बैठे ले सकते हैं। तो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस ये एक अलग तरीके का प्रोजेक्ट है जो देश में पहली बार दिल्ली सरकार में लागू किया गया। ऐसे बहुत सारे और इनिशिएटिव हैं जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए गए कि दिल्ली में अभी तो जीएसटी रिजीम में है हम, लेकिन बहुत सारी चीजें कैस्केडिंग इम्पैक्ट में आती हैं। दिल्ली में टैक्स हमने बहुत कम किए वैट रिजीम में, जिन चीजों पे 12% टैक्स था हमने 5% और व्यापारियों से बात करके किया और फिर वो बढ़ा, हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ा ये करने के लिए बावजूद। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं एंड ऑफ कोर्स द अल्टीमेट थिंग इज द ऑनेस्ट पॉलिटिकल गवर्नेंस। ईमानदारी की राजनीति है जिसमें आप ईमानदारी की नीयत से काम करते हैं, एक विजन के साथ काम करते हैं, तो आपको सरकार में खर्च करने के लिए पैसा भी आता है, फिर पैसे की कमी नहीं रहती है। Moving on to our next category, Best Performing Small State in Economy, Tourism and Infrastructure. The award here goes to Goa. Moving on from the small states to the big states. In the first category, Most Improved Big State in Infrastructure, the award goes to Jharkhand. Let's listen in as to what Mr. Soren has to say about his winning state. आज इंडिया टुडे की तरफ से ये कॉन्क्लेव आयोजित की गई है और इस पे शामिल सभी सम्मानित अतिथियों का, गणमान्य सदस्यों का, केंद्रीय मंत्रीगणों का मैं स्वागत करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। और चूँकि समय का ऐसा पाबंदी है कि सशरीर उपस्थित मैं नहीं हो पा रहा हूँ, जो मुझे जानकारी मिली है कि इंडिया टुडे ने झारखंड प्रदेश को आधारभूत संरचना के लिए देश में पहला स्थान दिया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। राज्य अलग हुए हमारे 20 साल हो गए और 20 सालों में कई दिशाओं में प्रयास हुआ। वैसे तो झारखंड पहले कई विषयों को लेकर चर्चा होता रहा है देश में, कोई उसका कहा जाए कि बहुत अच्छी रिपुटेशन शायद इस राज्य की नहीं बन पाई थी, लेकिन अब आप खुद ही इसके गवाह बन रहे हैं कि कई क्षेत्रों में झारखंड बेहतर काम कर रहा है। आपने देखा इस वैश्विक महामारी में झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों ने, जहां हम आज बतौर मुख्यमंत्री के रूप में इस चुनौती को देख रहे हैं, इस कोरोना काल में हमने किस तरीके से अपना प्रबंधन किया, किस तरीके से यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखा, स्वास्थ्य व्यवस्था को किस तरीके से हमने चुनौती के रूप में लिया, और लॉकडाउन के दौरान जब पूरी तरीके से देश के अंदर आवाजाही बंद थी, उस दौरान हमने वर्ल्ड क्लास यहाँ पर लेबोरेटरीज स्थापित किए और आज के दिन में हमारा इस राज्य में कोरोना को लेकर जो जांचें हो रही हैं, देश के कई राज्यों की तुलना में हम बहुत बेहतर हैं। और आज इस वैश्विक महामारी में हमारे राज्य में किसी भी तरीके का कोई अफरा तफरी नहीं है,
किसी भी तरीके का कोई हाहाकार नहीं है। आज इस राज्य के जीवन को सामान्य जीवन की ओर ले जाने का लगातार हमारा प्रयास है और उस प्रयास में हम सफल भी हो रहे हैं आमजनों के सहयोग से, और हमारी कार्यपालिका की कुशल प्रबंधन का ये परिणाम है। आज जो आधारभूत संरचना का मुख्य बिंदु कहें तो सड़क, बिजली, पानी की जो मुख्य बातें उस पे हम बेहतर होते दिख रहे हैं। आज राज्य के अंदर बिजली बेहतर तरीके से अपना नेटवर्क फैला रही हैं, सड़कें बेहतर हो रही हैं, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, और अब हम जो नए तरीके से नई कार्य योजना तैयार कर रहे हैं, कई नई नीतियां हम बना चुके हैं, कई नीतियां पर काम चल रहा है, चाहे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे यहाँ स्पोर्ट्स का खेल के जगत में जो हमारा पोटेंशियल है उसको आगे बढ़ाने के लिए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की दिशा में, शिक्षा के दिशा में, इन सब दिशाओं पर हमारी नई पॉलिसियाँ पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब राज्य की छवि देश में बेहतर बनेगी और यहाँ पर लोग बहुत तेज़ी से भविष्य में अपना व्यापार के दिशा में हमें सहयोग करेंगे, और आपके इस सर्वे से और इस कॉन्क्लेव से झारखंड प्रदेश के लिए एक बेहतर संदेश देश में जाएगा। और उम्मीद करता हूँ, और उम्मीद ही नहीं बिल्कुल भरोसा है कि अब हम लोग इस राज्य को अग्रणी राज्यों के समकक्ष लाने की जो हमारी मुहिम है उस पर हम आगे बढ़ेंगे। आज के इस कॉन्क्लेव में हमारे कई गणमान्य मंत्रीगण भी पहुंचेंगे। मुझे जानकारी है, जो मिली है, जो हमारे परिवहन मंत्री गडकरी साहब हैं वो भी उपस्थित होंगे। उनसे मेरा आग्रह और नम्र निवेदन है कि हमारे राज्य में बहुत सारे सड़कें जो केंद्र सरकार को समर्पित हुआ है, वो सड़कें बनने के बाद कुछ बिगड़ती भी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा, जो एनएच की सड़कें खराब हैं उनको जल्द से जल्द हमें स्वीकृति प्रदान कर उसको और बेहतर करें, ताकि हमारी जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम लोग साध पाएँ। Moving on to our next category, Best Performing State in Entrepreneurship. The award goes to Haryana. Let's listen in on what Mr. Manohar Lal Khattar, the Chief Minister, has to say about winning the award. प्रिय सज्जनों, वर्ष 2019 में उद्यमिता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए हरियाणा राज्य को इंडिया टुडे द्वारा प्रदान की गई ट्रॉफी ग्रहण करके मुझे बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है। ये ट्रॉफी हमारी सरकार के लिए नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए पुरस्कार व सम्मान है। इसलिए मैं प्रदेश के नागरिकों को, विशेषकर कुशल उद्यमियों को इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ ही इंडिया टुडे की सराहना करता हूँ, जो विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों के कार्य का आंकलन करती है। इससे राज्य सरकारों को अपनी नीतियों व कार्यक्रमों की समीक्षा करने का अवसर मिलता है। यही नहीं, जिन क्षेत्रों में दूसरे राज्यों का प्रदर्शन श्रेष्ठ रहता है उनमें अन्य राज्यों को भी वैसा ही कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इसी दिशा में कृषि प्रधान राज्य हरियाणा को उद्यमिता में श्रेष्ठ स्थान मिलना अनुकरणीय है। आप जानते हैं कि वर्तमान समय में उद्योग क्षेत्र किसी भी देश अथवा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नापने का पैमाना बन चुका है। इसी बात को समझते हुए हमने हरियाणा में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इस क्षेत्र की सब नीतियों और कार्यक्रमों को हमने सुशासन के जरिए अक्षरशः लागू किया है। यही नहीं,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग से MSME विभाग का गठन किया है। हमारे प्रयासों से प्रदेश स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम को लागू करने में अग्रणी राज्य बन गया है। हम उद्योगों के अनुरूप बुनियादी ढांचा विकसित करने के साथ साथ उनके अनुकूल मानव संसाधन विकसित करने पर भी जोर दे रहे हैं। इसके लिए उद्योगों की ज़रूरत के अनुसार पाठ्यक्रम व हुनर युवाओं को सिखाए जा रहे हैं। उद्योग ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी हमने बदलते समय की मांग के अनुसार नई पहल की है। हम सरकार की सेवाओं और योजनाओं को लोगों के घर द्वार पर ही देने के लिए दृढ़ प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हर परिवार का एक परिवार पहचान पत्र बनाया जा रहा है और उससे सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को जोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार गांव को लाल डोरा मुक्त कर ग्रामीणों को उनका मालिकाना हक प्रदान करना एक ऐतिहासिक पहल है, जिसे अब राष्ट्रीय स्तर पर स्वामित्व योजना के रूप में अपनाया गया है। ग्राम दर्शन पोर्टल तथा कई अन्य ई सेवाओं की शुरुआत सुशासन वर्ष 2020 की अविस्मरणीय पहल है। हमने किसानों, श्रमिकों, व्यापारियों, युवाओं, महिलाओं आदि हर वर्ग के लिए अनेक नए कदम उठाए हैं तथा पहले से चली आ रही योजनाओं को अधिक कारगर ढंग से लागू किया है। हम विकास और जन कल्याण के इस दौर को बनाए रखने के लिए कृत संकल्प हैं। इस अभियान में हम इंडिया टुडे जैसी संस्थाओं द्वारा दिए गए सुझावों का भी भरपूर लाभ उठाते रहेंगे। मैं उद्यमिता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ट्रॉफी प्रदान करने के लिए इंडिया टुडे का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और इस संस्था की निरंतर प्रगति की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। Our next category, Most Improved Big State in Governance. The award goes to Assam. Moving on to our next category, Most Improved Big State in Agriculture. And no surprises there, the winning state is Madhya Pradesh. Let's listen in on what Mr. Shivraj Singh Chauhan, the Chief Minister of Madhya Pradesh, has to say about his initiatives in pushing agriculture in the state. सबसे पहले मैं इंडिया टुडे समूह को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। एग्रीकल्चर में मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट का अवार्ड मध्य प्रदेश को दिया है। ये अवार्ड और अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। ये काम कोई एक दिन में नहीं हुआ। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, इसलिए 2005 के अंत में ही जब मैं मुख्यमंत्री बना तब मैंने तय कर लिया था कि खेती और किसान को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और खेती को हम फायदे का धंधा बनाएंगे। और खेती को लाभ का धंधा बनाना है तो 4 चीजें हमने तय की। एक, किसान का उत्पादन बढ़ाना। उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था, इसलिए 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ा के हमने सिंचाई का रकबा 41 लाख हेक्टेयर कर दिया और अब 60 लाख हेक्टेयर तक ले जाने की हमारी तैयारी, हम रुकने वाले नहीं हैं। बिजली की बेहतर उपलब्धता के कारण भी ट्यूबवेल और कुएं से बेहतर सिंचाई हुई। समय पर खाद बीज की उपलब्धता, मैकेनाइजेशन, बेहतर व्यवस्थाएं किसानों को, जिनमें हमने बोनस देने से लेकर अनेकों प्रकार के प्रयास किए। दूसरे, हमारा लक्ष्य था उत्पादन की लागत घटाना। उत्पादन की लागत घटाने के लिए हमने आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया, जैसे धान के लिए, सोयाबीन के लिए श्री पद्धति, रिजेंट फेरो जैसी पद्धति का इस्तेमाल किया। वहीं हमने किसान को 0% ब्याज पर कर्जा भी दिया ताकि उत्पादन की लागत घटाने में मदद हो सके, नहीं तो ब्याज चुका चुका के वो परेशान हो जाता था। अनेकों प्रयास किए। तीसरे, उत्पादन का ठीक दाम उसको देना। इसलिए मध्य प्रदेश में हमने जो खरीदी की उसकी बहुत बेहतर व्यवस्था की। अब इसी साल हमने 1,29,00,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूँ खरीदा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, और देश में हम नंबर 1 हो गए। पंजाब भी हमसे पीछे रह गया।
बेहतर दाम देने की हमने हर संभव कोशिश की। बीच में हम भावांतर भुगतान जैसी योजनाएं भी लेके आए और अब भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हम तत्काल कदम उठाते हैं। और चौथे, किसान को अगर नुकसान हो जाए तो उसकी ठीक भरपाई करने का प्रयास करना, चाहे वो राहत की राशि RBC 6.4 के अंतर्गत हो, उसको हमने काफ़ी बढ़ाया। और फसल बीमा योजना के अंतर्गत जैसे इसी साल अगर आप देखेंगे तो हमने पहले 3,100 करोड़ रुपया और फिर 4,688 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान को दिए। एक और नई योजना हमने बनाई, प्रधानमंत्री जी खेती किसानी और जनता के लिए लगातार सोचते रहते हैं। उन्होंने जो कदम उठाया वो ऐतिहासिक है कि प्रधानमंत्री किसान कल्याण निधि 6,000 रुपया हर साल देने का फैसला किया। हमने मुख्यमंत्री कल्याण किसान कल्याण निधि बना के 4,000 रुपया और जोड़ के अब मध्य प्रदेश में सुनिश्चित कर दिया कि 10,000 रुपया किसान को कम से कम मिले। एक बड़ा सहारा किसान को हुआ। खाद बीज इसके लिए जब कर्जा लेना पड़ता था, तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए कर्जा लेना पड़ता था, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो किसान को ठीक दाम मिल जाए इसकी कोशिश। और जब ये चारों चीज़ें हमने की तो किसान खेती की तरफ और आकर्षित हुआ। उसने बेहतर मेहनत की, बेहतर परिणाम दिए। इसलिए मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट अगर एग्रीकल्चर में हैं तो ये किसानों के परिश्रम का परिणाम भी है। और मैं इस अवार्ड को अपने किसानों को समर्पित करता हूँ। Moving on to our next category, Most Improved Big State in Inclusive Development, and the winning state here is Bihar. Let's listen in on what Mr. Nitish Kumar has to say about winning this award. समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ के मामले में बिहार को सबसे बेहतर राज्य घोषित करने के लिए मैं इंडिया टुडे समूह को धन्यवाद देता हूँ। न्याय के साथ विकास शुरू से ही हमारी सरकार का मार्गदर्शी सिद्धांत रहा है। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का लाभ बिहार के सभी क्षेत्रों तथा सभी वर्गों को मिले, यही हमारा लक्ष्य रहा है। 2005 से पहली बार सरकार बनने से आज तक कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास हुआ है। जैसे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP वास्तविक रूप से 5 गुना बढ़ा है। दोहरे अंक की वृद्धि दर लगातार बनी हुई है तथा औसत आयु में वृद्धि हुई है। वर्ष 2005-06 में जहां शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 की संख्या पर 61 थी, अब वह घटकर 32 रह गई है। और जो पहली बार राष्ट्रीय औसत के बराबर है तथा मातृ मृत्यु दर जो 2005-06 में प्रति लाख की संख्या पर 312 थी, वर्तमान में घटकर 149 हो गई है। कोरोना वायरस के चलते राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में इच्छुक बिहारी श्रमिक बिहार वापस लौटे। कोरोना संकट के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा अभी तक 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जा चुकी है। लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे बिहार के लगभग 21 लाख लोगों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री विशेष सहायता के रूप में 1,000 रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। राज्य के 1,64,00,000 राशन कार्ड धारियों एवं राशन कार्ड हेतु चिन्हित परिवारों को 1,000 रुपये प्रति परिवार की दर से कुल 1,640 करोड़ रुपये वितरित किए गए। 23,38,000 वंचित परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया। अधिक संक्रमण वाले शहरों से लौटे 15 लाख से अधिक लोगों को 14 दिनों तक प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन केंद्रों में रखा गया। यहाँ रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति पर औसतन 5,300 रुपये खर्च किए गए। हमारी सरकार ने देश में सबसे पहले महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में 50% आरक्षण दिया। 2015 में हमारी सरकार ने विकसित बिहार के लिए 7 निश्चयों की शुरुआत की। यह सभी निश्चय आर्थिक हल, युवाओं का बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नालियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान एवं अवसर बढ़ें, आगे बढ़ें सार्वभौमिक है, अर्थात सभी के लिए। इनमें से हर घर में बिजली पहुंचा दी गई है
और शौचालय का काम पूरा हो चुका है। महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। 89% घरों में पीने का पानी पहुंच चुका है तथा अधिकांश घरों तक पक्की गली नाली बन चुकी है। अधिकांश काम पूरा हुआ है और शेष कार्य भी शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। हमारी सरकार द्वारा प्रारंभ से ही बालिकाओं को शिक्षा की ओर उन्मुख करने तथा स्कूलों में उनकी संख्या बढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति, पोशाक तथा साइकिल जैसी योजनाएं चलाई गईं। शिक्षित बालिकाओं के कारण प्रजनन दर में तेजी से कमी आई। कुल प्रजनन दर जो वर्ष 2005-06 में 4.3 थी, अब घटकर 3.2 रह गई है। बालिका शिक्षा का प्रजनन दर में कमी से बिल्कुल सीधा संबंध है। पति पत्नी में यदि पत्नी मैट्रिक पास है तो देश एवं राज्य में उनका प्रजनन दर 2 है। यदि पत्नी इंटर पास है तो देश में प्रजनन दर 1.7, जबकि बिहार में यह 1.6 तक घट जाती है। इसी को देखते हुए सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। अब तक कुल 5082 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय हो गए हैं और शेष 3304 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु मिडिल स्कूलों में 9वीं की पढ़ाई चालू करने हेतु पूरी तैयारी कर ली गई है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु जीविका परियोजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जीविका समूह बनाए गए, जिसमें 1,20,00,000 से अधिक महिलाएं सदस्य हैं। इसके साथ ही समाज के वंचित वर्गों यथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए गए, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। अन्य पेंशन योजनाओं में छूटे हुए सभी वृद्धजनों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रारंभ की गई। अब तक लगभग 22 लाख लाभुकों को पेंशन का लाभ दिया जा चुका है। आगे भी पात्र लोगों को इसका लाभ दिया जाता रहेगा। सरकार द्वारा सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई तथा बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। हम लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जल जीवन हरियाली अभियान प्रारंभ किया है तथा इस पर तेजी से काम हो रहा है। इस अभियान के समर्थन में 19 जनवरी 2020 को राज्य में 18,000 किलोमीटर से अधिक लंबी मानव श्रृंखला बनी, जिसमें 5,16,00,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। समावेशी विकास एक सतत प्रक्रिया है। रास्ता लंबा है, परंतु हमें इस बात का संतोष है कि हम सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। मैं पुनः बिहार की जनता की ओर से आपके द्वारा बिहार में हो रहे कार्यों की मान्यता देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।